what you can say, future simple. And this is part 4 of topic voice. Before this video, you already watched simple present and you can what you can say, past simple. So part 4 is very crucial. Why? Because we will see the concept of future tense of active and passive. So we start the class. As you know, the active structure of future simple is subject plus will plus V1 plus object is here. The question arises is, where is shall? As you know, shall we cannot use in simple future. Why? Because we can use shall what in modal verb. हमने आपको बताया था कि टेंस में ही बताया था कि अब जो है हम टेंस में shall का प्रयोग नहीं करते हैं. क्यों? क्योंकि जो ग्रामरियन है, जो ग्रामर का बुक लिखता है, उन्होंने बोला कि shall का जो यूज हम करेंगे अब किस में करेंगे, मॉडल वर्ब में यूज करेंगे. इसीलिए सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, फ्यूचर में हम किसका यूज करते हैं, सिर्फ विल का यूज करते हैं. इसीलिए हमने स्ट्रक्चर लिखा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. किसका? एक्टिव स्ट्रक्चर. और पैसिव स्ट्रक्चर इज व्हाट, लिटिल बिट चेंजेस देयर. सी मींस द ऑब्जेक्ट व्हिच विल कम एट लास्ट इन एक्टिव, it will come at first in passive as a subject. See here, the structure is object plus will, and the new thing we add is what, be, be, and after that third form of the verb is there, by, and what last you can say what, object, subject is there. So beyond the formula of active and passive, so we can implement this formula in the question. See, affirmative question of simple future is, you will finish the work. Simple question is there, and the basic concept already you thought that only 3 things we have to find. First, subject, verb, and object is there. So you is subject here, will is helping verb, finish is what you can say main verb, and the work is what you can say object here. And the concept is that the object will come at last in active, it will come first in passive as a what, subject. So the work, and only one helping verb is there, so will is here. And after that we can use be, we, and after that we can use third form of the verb. So finish, third form is what, finished, and by is there, and you, subject object is what, same. So you will not change, and here we can write what, you. So you will finish the work, active sentence, and we can make passive like this, the work will be finished by you. What is the negative of this sentence? Active sentence is, you will not finish, you will not finish, not finished, it is wrong. You will finish the work. This is active structure. How we can change? Simple, it is very simple, na? So object, here is the object at last, but it will come at first here. The work will, as you know, after helping verb, position of not is what? After helping verb we use not. So will is helping verb, after it we use what? Not here. And after that be is there. Finished, because finished third form is what? Finished by, and subject object of you is same. That's why we can write here you. कहने का मतलब समझिए, जो वर्ड, ये एक सेंटेंस है नेगेटिव का, यू विल नॉट फिनिश द वर्क, या सिंपल सेंटेंस नेगेटिव का, अगर हमको नेगेटिव का पैसिव बनाना तो कैसे बनेंगे? जैसे हम अफर्मेटिव का बनाए तो उसे हम किसका बनेंगे, नेगेटिव का बनाएंगे. सिंपल कॉन्सेप्ट है. क्या लिखेंगे? जो वर्क, द वर्क यहाँ पे बाद में है, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले आएगा सब्जेक्ट रूप में. द वर्क हेल्पिंग वर्ब एक ही है, विल नॉट. अब नॉट का पोजीशन कोई पूछेगा कि फिनिश के बाद क्यों नहीं लिखा, तो इसीलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का पोजीशन आता है. तो यहाँ पे नॉट लिखे. वी और फिनिश का थर्ड फॉर्म क्या होता है, फिनिश्ड बाय, और यू का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का होता है, दोनों सेम होता है, इसीलिए हमने लास्ट में लिखा यू. अब देखिए जो इंट्रोगेटिव इसका कैसे बनेगा, विल यू फिनिश द वर्क, क्वेश्चन मार्क. अब आपको पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज देयर, सो वी कैन यूज हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट. सी
the word. According to the word, we will decide helping word. And when we want helping word is there, that's why we can write will, the work, and after it be is there, we, and after third form is there. Be finished by you, and at last question mark is there. So what is the WH of this sentence? How will you finish? How will you finish the work? At last question mark is there. As you know, in WH the position of WH is fixed. यहाँ भी देखो हाउ से स्टार्ट सेंटेंस स्टार्ट हुआ, यहाँ भी हाउ से स्टार्ट होगा. उसके बाद जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम पढ़े उसको यूज करेंगे. देखिए द वर्क, यहाँ पे क्या चीज ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे पहले आएगा तो सब्जेक्ट ग्रुप में द वर्क, और इसके अनुसार हमें चलेगा विल लिखा. वी यहाँ पे पैसिव में है तो हम लिखा वी. फिनिश का थर्ड फॉर्म फिनिश्ड बाय, एंड लास्ट वी कैन यूज व्हाट, यू. व्हाई? बिकॉज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ यू इज व्हाट, सेम. एट लास्ट क्वेश्चन मार्क इज देयर. सो दीज आर द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टूडेंट कि जो एक्टिव स्ट्रक्चर होता है फ्यूचर परफेक्ट का, सब्जेक्ट विल, हैव, वर्ब थॉट प्लस ऑब्जेक्ट इज देयर, बट लिटिल बिट चेंज इन व्हाट, पैसिव ऑफ व्हाट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस. ऑब्जेक्ट इज देयर, will, after that have, will, verb, third form is there, by is there, and what, subject is there. How we can implement this formula into question, we will see. See, affirmative question of future perfect active. He will have loved me. So the basic concept, before solving this question, first identify three things: subject, verb, and object. After it, you are able to solve the question. See, he is subject. Will have is what you can say, helping verb. Loved is what you can say, main verb. And me is what you can say, object. आपको पढ़ाया गया है कि अगर एक्टिव में ऑब्जेक्ट अगर अंत में आ रहा है तो पैसिव में क्या होगा, फर्स्ट में सब्जेक्ट रूप में, तो ही किस में चेंज होगा, आई में चेंज होगा. आप ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं कैसे चेंज होता है प्रोनाउंस. तो अब यहाँ पे देखो आई आ गया, उसके बाद आपको सब्जेक्ट आ गया, और सब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब चुन लेते. लेकिन यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब है तो क्या होगा, आई विल हैव, विल नया ऐड होगा यहाँ पे, विल. विल आफ्टर दैट जो थर्ड फॉर्म होता है लव का, वह क्या होता है, लव्ड बाय, और ही किस में चेंज होता है, हिम में चेंज होगा. तो जो पैसिव बना इस सेंटेंस का, ही विल हैव लव्ड मी, इसका पैसिव क्या बना, आई विल हैव बीन लव्ड बाय हिम. अब देखो इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, ही विल हैव नॉट लव्ड मी. तो सिंपल है, सिर्फ नॉट लगा दिया नेगेटिव सेंटेंस ताकि कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा. देखिए आई है अंत में, तो यहाँ पे पहले आएगा सब्जेक्ट में, तक किसमें चेंज होगा, मी है अंत में यहाँ पे, तो किसमें चेंज होगा, आई में चेंज होगा सब्जेक्ट रूप में. तो आई विल हैव. और आपको पता है कि यहाँ पे देखो इसके बाद नॉट आएगा. कोई अगर कुछ कंफ्यूजन होगा कि सर हैव बीन के बाद नॉट आएगा, नहीं, क्योंकि ये तो पैसिव एडवर्ब है बीन. तो स्ट्रक्चर क्या होता है एक्टिव का, तो कोई हैव होता है तो उसके हैव के बाद ही नॉट आएगा. ऐसा नहीं हो सकता कि हैव बीन नॉट, नहीं, ये गलत हो जाएगा. जब भी आएगा तो हैव के बाद नॉट आएगा, उसके बाद हम बीन लिखेंगे. तो क्या होगा, आई विल हैव नॉट बीन लव्ड बाय हिम. अब कैसे होगा और कैसे हम बनाए, आप ऑलरेडी जानते हैं, कुछ नहीं करना है. मी है या ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मी का चेंज, मी किसमें चेंज होगा, आई में चेंज होगा सब्जेक्ट रूप में, विल हैव. और यहाँ पे कंफ्यूजन होगा तो यहाँ पे हम नॉट इसे लगाए, क्योंकि देखो हैव है और आपके हेल्पिंग वर्ब के बाद ही क्या आता है, नॉट आता है. विल तो पैसिव में लगा है ना, तो उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे विल, और लव का थर्ड फॉर्म जानते हैं का, लव्ड बाय, ही का ही किसमें चेंज होगा, हिम में चेंज होगा. तो यही बना, ही विल हैव नॉट लव्ड मी, इसका पैसिव क्या बना, आई विल हैव नॉट बीन लव्ड बाय हिम. अब देखो यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे, इसी क्वेश्चन का इंट्रोगेटिव, विल ही हैव लव्ड मी, क्वेश्चन मार्क लास्ट में दिया हुआ है, तो क्या बनेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया है यहाँ पे तो गलत हो गया ना, यहाँ पे क्या होगा बाबू, आई होगा. अब यहाँ पे देखो
मी है किसमें चेंज होगा, आई में चेंज होगा, लेकिन इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग में पहले आएगा, तो यहाँ पे तो एक ही हेल्पिंग हुआ, हमने लिखा विल, आई हैव विल, क्योंकि बिन यहाँ पे ऐड हुआ पैसे में, तो हमने लिखा यहाँ। लव का थर्ड फॉर्म क्या होता है, लव्ड बाय, और ही जो होगा वो किस में चेंज होगा, तो ही में चेंज होगा, क्योंकि हम कैसे प्रोनाउंस को हम चेंज करते हैं ऑलरेडी आप प्रीवियस वीडियो में हम बता चुके हैं। और लास्ट में क्या देंगे, क्वेश्चन मार्क। अगर इसी सेंटेंस का अगर आपको डब्ल्यूएच पूछे तो कैसे बनाएंगे, वो तो और इजी। देखो, व्हाई विल ही हैव लव्ड मी, तो आपको बताया कि अगर डब्ल्यूएच से कोई भी सेंटेंस अगर स्टार्ट हुआ है तो डब्ल्यूएच का जो पोजीशन एक्टिव में वही पोजीशन का होता है पैसिव होगा, तो हमने यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है। उसके बाद जो बेसिक कॉन्सेप्ट आप वही बनाएंगे। तो देखो आई, यहाँ पे मी है तो किस में चेंज होगा, आई में चेंज होगा, हमने आई लिखा। और डब्ल्यूएच है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, पहले आएगा, तो हमने लिखा विल, हैव, विल। उसके बाद देखो लव, लव का थर्ड फॉर्म जानते हैं क्या होता है, लव्ड बाय, और ही किस में चेंज होगा, हिम में चेंज होगा। तो यही आपका कॉन्सेप्ट रहा फ्यूचर टेंस का एक्टिव टू पैसिव। अब सवाल उठता है कि सर आपने तो बनाया ही नहीं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव टू पैसिव, और एक हमने और नहीं बनाया है फ्यूचर कंटिन्यूअस का। तो आप याद रखेंगे यह सब टेंस का एक्टिव से पैसिव क्या होता है, नहीं बनता है। एक्टिव तो लिख सकता है सेंटेंस, लेकिन पैसिव इस सब का नहीं बनता है। किसका किसका नहीं बनता है, तो सिंपल। लेकिन अब हम क्यों नहीं बनाते हैं, तो इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि विल बी विल जो हम लिखते हैं तो ग्रामेरियन ने बताया कि यहाँ और लगता है, अच्छा नहीं लगता पढ़ने में, इसीलिए हम इसका एक्टिव से पैसिव नहीं बना सकते हैं। किसका, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। और इससे पहले आप किसका किसका नहीं बनाते थे, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनाते थे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनाते थे, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनाते थे। तो यह कॉन्सेप्ट है